Good morning and assalamu alaikum to students. Are you there? I hope you all will be fine and you will be able to hear me. So please ensure me that the audio video is clear so that we may proceed forward. Okay. So what about the previous yesterday lecture? I I advise you that kindly review the lectures so because these lectures are basically interconnected with each other. For example, if we don't have the idea of carbohydrates, we can't move to proteins. If we don't have the idea of proteins, we can't move to protein metabolism. If we don't have the idea of lipids, we cannot move to lipid metabolism. So, in the same way, and vitamins are basically what we have done in the previous week. For the metabolic point of view, the vitamins are playing a very very vital role because as you see that vitamins are going to play a vital role in the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids, and mostly they act as a coenzymes or cofactors. So all the organic basically coenzymes are made up of the vitamins, and now as we are moving towards the metabolism of carbohydrates, proteins and lipids, these are the chapters basically which we which are left and which we will cover inshallah in the next coming weeks. In these chapters which are related to metabolism, these vitamins are very very important basically because we will see that they act as the coenzymes, and enzymes are also very important in the metabolic point of view. So we have done with the chapter of enzymes, we have done with the chapter of the vitamins. So I think it is the right time to study the carbohydrate metabolism, which is today's lecture, carbohydrate metabolism. And I must tell you that this is one of the important topic of the biochemistry. We can't skip it in any way. In any way you have to concentrate on the carbohydrate metabolism because as with respect to examination point of view, carbohydrate metabolism is really really important, and all the pathways which are included in this chapter have come in the previous exams. And if you look at the previous papers of BSN biochemistry, then there are one or even more than one questions which have basically taken from the carbohydrate metabolism. So metabolism is definitely the important pathways of it covers the important pathways of the body. And as far as carbohydrate metabolism is concerned, so carbohydrate supply, we all know that carbohydrates supply maximum amount of energy. They are basically considered as the staple food, and 60% of our dietary intake, it should be comprised of carbohydrates. So carbohydrates, as they are highly important, because if you remember, proteins are important, lipids are important, but that's concentration in our diet, and the percentage of the proteins and lipids which we may include in our diet is quite low as compared to carbohydrates. So we have to take large amount of the carbohydrates and a few amounts of the proteins and the lipids, and trace amount of vitamins and the minerals. So carbohydrates are abundant basically dietary component. So students are getting online, I think. If all of them are not online yet, if most of the students get online, so we may start the metabolism of carbohydrates. Before
Going into metabolism of carbohydrates, we must know that what is basically a metabolism. We must have the idea of metabolism. We must have the components of the metabolism. Before proceeding the carbohydrate metabolism, we should know that what is metabolism. Any one of you know the definition of the metabolism? I think we have discussed it many times in the class. The definition of the metabolism, because now our later chapters are from the metabolism. Either it is carbohydrate metabolism, protein metabolism, or like fats metabolism. So any one of you remember the metabolism definition? Yes, I'm getting the few answers. Basically, that is the sum of the biochemical reactions. Sum, not SOME. That is the sum of the biochemical reactions which are taking place in the human body, or we can say all the chemical reactions taking place in the living body is come under metabolism. So this is basically sorry, the sum of the metabolic reactions taking place in our body is called as metabolism. जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, उसको आप कलेक्टिवली अगर ले लो, उसका इकट्ठा कर लो उन सबको, तो उसको हम कह रहे हैं जी दिस इज अ मेटाबॉलिज्म. ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी. ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल respiration. We all are respiring. Definitely, without respiration how can we survive? So this is a biochemical reaction. If you have taken your breakfast, then the process of digestion is ongoing, and this is also a metabolic reaction. Process of excretion, synthesis of the proteins, synthesis of the lipids, then breakdown of proteins, breakdown of lipids. All these processes basically come under the metabolism. So metabolism is a very vast a term. It's a very vast terminology, and it covers all the biochemical processes. And I must tell you, there are a number of the biochemical processes which are going continuously in our body, and we are unaware of it. For example, we are aspiring, but we are unaware. In our body, red blood cells, we all know that the life of red blood cell is only 120 days. After 120 days, there is formation of new RBCs, but we are unaware of it. In our body, the process is continuous. प्रोसेसेस बॉडी में चल रहे हैं, कंटिन्यूड हैं, बट वी आर अनअवेयर. ऐसा नहीं है कि हमें किसी प्रोसेस के लिए, किसी साइकिल के लिए कुछ रुकना पड़ रहा है या अपनी डेली एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना पड़ रहा है. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. ठीक है, स्किन सेल्स की भी एक लाइफ है कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद इसने रीजनरेट करना है, वो रीजनरेट हो रहे हैं. रेड ब्लड सेल्स ने 120 डेज बाद रीजनरेट करना है, वो रीजनरेट हो रहे हैं. ठीक है, दे ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, दी ऑल आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस. प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है, कीटोन बॉडीज बन रही हैं बॉडी में. ठीक है, तो ऑल द फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है, लिपोलाइसिस का रिएक्शन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है. सो देर आर नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, बट वी आर अनअवेयर. ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें कुछ बॉडी को कोई रेस्ट देने की ज़रूरत है, रुकना पड़ता है. सो दे आर कंटिन्यूड इनसाइड द बॉडी. And there are some reactions which involve the breakdown, and there are some reactions which involve the building up process. So we have two type of biochemical reactions. Okay, one is anabolic reaction and one is catabolic reaction. So we have basically two types of the metabolic reactions. One is anabolic reactions and another is catabolic reactions. So we know the difference between the anabolic reactions and catabolic reactions. इसको हम
ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू two types. One is anabolism and another is catabolism. So metabolism is divided into basically two types. One is anabolism and second is catabolism. So we have two types of basically metabolic reactions: anabolism and catabolism. These are the two types of basically metabolic reactions. How can we define the basically anabolism? Anabolism is building up of the biomolecules. Building up of the biomolecules is called as anabolism, and breaking down of biomolecules is called as catabolism. The building up of biomolecule is called as anabolism, and building up a biomolecule is called as anabolism, and the breaking down of biomolecule is called as catabolism. I think my voice is clear. Building up is anabolism, and we have numerous examples of these anabolism and catabolism. If you see, we have numerous examples of anabolism reactions and catabolism. Example, any one of you can give the example of anabolic and catabolic reactions. Any one of you can give the examples of reactions which involve anabolism or catabolism, because we have two types of reactions: anabolic reactions and catabolic reactions. And you know, there is also another basically type of reactions which are called as amphibolic reactions. Amphibolic reactions are those reactions which involve both anabolic and catabolic reactions. So amphibolic reactions are those reactions which involve both anabolic and catabolic reactions. इसमें दोनों आ सकते हैं, ठीक है. ऐसा पाथवे जिसमें मॉलिक्यूल्स बन भी रहे हैं और ब्रेक भी हो रहे हैं, तो ऐसा पाथवे को हम कहेंगे एम्फोबॉलिक रिएक्शंस या एम्फोबोलिज्म. ठीक है, एम्फोबोलिज्म इज अ पाथवे विच इंक्लूड बोथ द बेसिकली प्रोसेसेस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. तो अगर किसी भी पाथवे में एनाबोलिज्म भी हो रहा है और कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, तो उस पाथवे को फिर हम कहेंगे एम्फीबोलिज्म. ठीक है, एम्फीबोलिज्म इज अ टर्मिनोलॉजी बेसिकली which involves both the catalytic reaction and anabolic reaction. जी बिल्कुल, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एनाबोलिज्म है, ठीक है. फोटोसिंथेसिस जो है एनाबोलिज्म है, लेकिन जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है दैट इज कैटाबोलिज्म. जो हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कैटाबोलिज्म. इसमें बिकॉज इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है. तो फोटोसिंथेसिस बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि इसमें देखो प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं फ्रॉम द सनलाइट. ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, और मैंने ये भी बताया है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हैं, कैटाबॉलिज्म भी हो रही है, उसको हम कह रहे हैं एम्फीबोलिज्म. So basically we should know the definition of metabolism, the subtypes of the metabolism, ठीक है, and also the examples of the reactions which involve anabolic pathways or catabolic pathways. अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं बेसिकली. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के ये हम सिर्फ ग्लूकोज की बात नहीं करेंगे. ग्लूकोज इज अ बेसिकली एंड प्रोडक्ट और इम्पॉर्टेंट मेंबर है कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, और एंड प्रोडक्ट है जो फिर हमें एनर्जी देता है. ठीक है, तो इसलिए जो पाथवेज हैं वो ज़्यादातर ग्लूकोज इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो पाथवेज हैं वो ज़्यादातर स्टार्ट ग्लूकोज से होते हैं, या उनमें ग्लूकोज की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज कोई भी आप जब कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है ना, जिसने आखिर में आपको
ब्रेक होके बिल्कुल आपको एनर्जी जब प्रोवाइड करने की बारी आती है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म रह जाती है, ठीक है। तो फिर इसलिए जो हमारे पाथवेज हैं वो स्टार्ट होते हैं ग्लूकोज से। चाहे आप पॉलीसेकेराइड ले लो, चाहे आप डाइसेकेराइड ले लो, ठीक है। आफ्टर ऑल पॉलीसेकेराइड ने भी टूटना है, ब्रेक होना है, डाइसेकेराइड बनाना है, फिर डाइसेकेराइड ने भी ब्रेक होना है, मोनोसेकेराइड बनाना है, और जो मोनोसेकेराइड हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है दैट इज़ ग्लूकोज, या जिस फॉर्म में हमें एनर्जी फिर मिलनी है वो दैट इज़ ग्लूकोज। इस वजह से हम जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसमें ग्लूकोज के पाथवेज को ज़्यादा स्टडी करते हैं। ये हमारा रेफरेंस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अच्छा जी, समवन इज सेइंग टू रिपीट द एम्फीबॉलिक रिएक्शंस, तो आई एम टेलिंग यू that there are two types of metabolic reaction, one is anabolic and another is catabolic, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पाथवे जिसमें ऐसा साइकिल जो तुम लोगों ने पढ़ा हो जिसमें चीज़ें बन भी रही हैं और फिर ब्रेक भी हो रही हैं, यानी कि हमें प्रोडक्ट भी मिल रही है और फिर उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड्स ब्रेक भी हो रहे हैं, तो ऐसे पाथवे को हम कहेंगे एम्फीबॉलिक रिएक्शंस, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ द पाथवेज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है। So the pathway which involves both anabolic and catabolic reactions are called as amphibolic pathway, amphibolic reaction, or simply amphibolism. Is it clear? जी, अब आगे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पाथवे है कार्बोहाइड्रेट का दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड जो साइकिल है ना, ये ऐसा पाथवे है जिसमें चीज़ें बन भी रही हैं और ब्रेक भी हो रही हैं, तो ये एम्फोबोलिज्म की एग्जांपल है, एम्फाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है कि एम्फीबॉलिक रिएक्शन की क्या एग्जांपल वगैरह है। बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एम्फीबॉलिक रिएक्शन। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस है, HMP शंट है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। कोडीज लैक्टिक एसिड साइकिल है। सो दे आर ऑल द pathways of, there are 7 basically pathways of the carbohydrate metabolism which we will study in the chapter number 10. So starting with the first pathway which is called as glycolysis, ठीक है। अब जो glycolysis है ये तो तुम लोगों ने पहले भी जो है ना बेसिकली पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। Another name of glycolysis is Embden-Meyerhof pathway, ठीक है। It was the name of the basically biochemist who identified this pathway, Embden-Meyerhof pathway, Embden-Meyerhof pathway, ठीक है। That is the basically name of the biochemist who discovered this pathway। तो हमें ये भी याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है। Sometimes क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द Embden-Meyerhof pathway, तो ऐसा ना हो कि यू माइट थिंक कि ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। You are only familiar with glycolysis. So another name of glycolysis we must remember that is Embden-Meyerhof pathway, ठीक है। That is another name of glycolysis. इसको हम Embden-Meyerhof pathway भी कहते हैं। So this is the basically breakdown of the glucose or glycogen up to the pyruvate or lactate. तो बेसिकली तो ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, लेकिन क्योंकि we all know that in our body glucose is stored in the form of the glycogen, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन दोबारा जो है वो ग्लूकोज में चेंज होती है हमें एनर्जी देने के लिए अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, फॉर एग्जांपल अंडर द कंडीशंस ऑफ द फास्टिंग, अंडर द कंडीशंस ऑफ द स्टेनिशियस एक्सरसाइज, और इफ यू आर नॉट टेकिंग ईटिंग एनीथिंग for for longer period of time, so our body is getting the energy from the stored glycogen। इस वजह से इन्होंने लिखा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज और ग्लाइकोजन अप टू पायरुवेट और लैक्टेट। एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस का जो होता है दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ द बेसिकली ग्लाइकोजन ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली पायरुवेट और लैक्टेट। दोनों इसके एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरोबिक है कि एनारोबिक है, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। So the glycolysis is the, we can simply say oxidation of glucose is called as glycolysis, or breakdown of glucose into pyruvate or lactate is called as glycolysis.
इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो रही है ग्लूकोज की, दैट्स वाई दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस. इट इज़ द मेन पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म टू जनरेट एनर्जी. मेजर पाथवे है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जब हम खाते हैं, बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यू रिमेंबर. तो जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, in our mouth there are an enzyme which is called as salivary amylase. So in our mouth there are enzymes called as salivary amylase which act on carbohydrates and break down the carbohydrates. ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बड़े सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. अगर तुम लोग मोनोसेक्राइड खाते हो तो उसकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. यहाँ जो बहुत कुक्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, वो स्टमक में जाके उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है. दे हैव बीन डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम. ठीक है एंजाइम अमाइलेज ही, लेकिन माउथ में है सलाइवरी अमाइलेज, और जो हमारे स्टमक में है दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज. सो पैनक्रियाटिक अमाइलेज बेसिकली एक्ट्स अपॉन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्ट इनटू डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स, और फिर ये डाइसेक्राइड्स वगैरह जो हैं ये फिर मोनोसेक्राइड्स में चेंज होते हैं, ठीक है. तो एंड प्रोडक्ट फिर भी हमें इनका ग्लूकोज ही मिलता है. फिर जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उस पाथवे को हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है. और ये मेजर पाथवे है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी दे रहा है हमें. और ग्लूकोज सेल के कौन से हिस्से में हो रहा है? बेसिकली ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस, ग्लाइकोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल, ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो सेल के साइटोसोल में बेसिकली हो रहा है. इट प्रोड्यूसेस द ATP, NADH2 एंड पायरुवेट, ठीक है. इसका एंड प्रोडक्ट्स में हमें आपको एक तो एनर्जी मिलेगी. एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? ATP की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है. NADH2 हमें मिलेगा, और साथ में जो है ना हमें मिलेगा बेसिकली पायरुवेट, ठीक है. दैट इज द बेसिकली एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. अब इससे पहले कि हम इसके स्टेप्स पे आए पाथवे के ऊपर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बेसिकली जो हम बार बार बात कर रहे हैं जी, ग्लाइकोलाइसिस मेजर पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का. So what is basically the significance of glycolysis? As I'm telling you that all the pathways of carbohydrate metabolism are very very important, and एक दो क्वेश्चंस लाजमी इसमें इसे आते हैं, ठीक है. तो हमें सिग्निफिकेंस हर पाथवे की लाजमी पता होनी चाहिए कि अगर तुम लोग क्रैब साइकिल पढ़ रहे हो तो इसका फ़ायदा क्या है बॉडी को. ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन यानी कि कीटोजेनेसिस बढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. या साइकिल पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो वी मस्ट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच एंड एवरी साइकिल. इफ यू डोंट नो द सिग्निफिकेंस तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या, ठीक है. और सिग्निफिकेंस या बेनिफिट्स, ठीक है, या इम्पोर्टेंस, all are the same things. So what is the significance of glycolysis? Basically glycolysis provides energy to the body, especially brain. देखो ब्रेन जो आपका मेजर हमारा ऑर्गन है जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है. दैट इज द मेजर ऑर्गन विच हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. जो मेटाबोलाइट बेसिकली, वैसे तो ग्लूकोज जो है वो हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, हर सेल को एनर्जी दे रहा है, और स्पेशली ब्रेन सेल्स बेसिकली टेक देयर एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है. तो ग्लाइकोलाइसिस एक पाथवे है जो बेसिकली ब्रेन सेल्स को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. अमंग द कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन यूटिलाइजेज ओनली ग्लूकोज एट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें से सिर्फ ब्रेन जो है फ्रुक्टोज को यूज़ नहीं करता, सुक्रोज को यूज़ नहीं करता, लैक्टोज को यूज़ नहीं करता, ठीक है. ब्रेन ओनली कंज्यूम्स, ओनली यूजेस ग्लूकोज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है. प्राइमरी सोर्स जो मेजर सोर्स है आपके ब्रेन का, दैट इज ग्लूकोज, एंड दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. इट इज ऑल्सो द मेन पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर हेक्सोसिस, ठीक है. जो बिकॉज ग्लूकोज इज अ हेक्सोज 6 कार्बन शुगर, इसी तरह से जो दूसरी 6 कार्बन शुगर्स हैं जैसे कि
फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ठीक है। तो उनके कैटाबॉलिज्म का भी ये मेन पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, बिकॉज फ्रुक्टोज कैन बी चेंज इनटू ग्लूकोज, ग्लैक्टोज कैन बी चेंज इनटू ग्लूकोज। ये जो शुगर्स हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल है बेसिकली, ठीक है, ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं बेसिकली। जब एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं तो फिर ये ग्लूकोज में चेंज होती हैं और फिर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है ना वो प्रोसीड करता है बेसिकली। Another benefit of glycolysis is it produces pyruvate, which then provides different metabolic intermediates, ठीक है ना। ये एंड प्रोडक्ट इसका पायरुवेट है, बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस द पायरुवेट, और फिर पायरुवेट फर्दर जो है ना, पायरुवेट से ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो बन सकती हैं, ठीक है, ढेर सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, तो हमें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मिल सकते हैं फ्रॉम द पायरुवेट। सो दैट वाज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस। Now there are coming towards the types of glycolysis. So basically we have the two types of the glycolysis, as the name is indicating, aerobic glycolysis and anaerobic glycolysis. So we have the two types, aerobic glycolysis and anaerobic glycolysis. And aerobic and anaerobic is based upon the basically availability of oxygen. So if the process of glycolysis takes place in the presence of oxygen, will be called as aerobic glycolysis. And if the process of glycolysis takes place in the absence of oxygen, this will be called as anaerobic glycolysis. So basically the major difference between the aerobic and anaerobic is the availability of the oxygen or the presence of the oxygen. अगर oxygen की presence में हो रहा है तो aerobic, absence में हो रहा है तो anaerobic। अब जाहिर है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में अगर बातें जोड़े हैं, इनका एंड प्रोडक्ट तो सेम नहीं हो सकता, एंड प्रोडक्ट भी इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। सो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एनारोबिक का जो डिफरेंस है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड डिफरेंस ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो दोनों में जो डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक में, वो भी हमने लाजमी बेसिकली याद रखना है। तो क्या डिफरेंस है उसमें अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस लाजमी है। फिर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट, ठीक है। जो एंड प्रोडक्ट है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का वो कौन सा है, पायरुवेट है। NADH is produced which gives 3 ATP through the respiratory chain which works only in the presence of oxygen. NADH क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, ठीक है, और NADH जो है ये हमने पढ़ा है कि 1 molecule of NADH gives us 3 ATP molecules through the respiratory chain। अगर याद हो FSC में भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक मॉलिक्यूल NADH का जब एंटर होता है तो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और NAD के साथ इसी तरह से FAD का भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ जो FAD है, 1 molecule of FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इट गिव्स अस 2 molecules of ATP, ठीक है। तो NADH जो है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में हमें 3 मॉलिक्यूल ATP के देता है। Total 10 ATPs are formed from 2 ATPs are basically utilized and the net gain is 8 ATPs। जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बेसिकली 2 molecules of ATP are required। So 2 molecules of ATP are required to initiate the process of glycolysis, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, देखो जैसे हमें कार को स्टार्ट करने के लिए भी नीड था पेट्रोल फ्यूल, तो जो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस का फ्यूल है दैट इज बेसिकली 2 molecules of ATP। अब टोटल इसमें 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो है 10 molecules are formed in during aerobic glycolysis, ठीक है, 10 molecules। इसमें से 2 यूज़ हो गए आपके एक्टिवेट करने के लिए, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो द नेट अमाउंट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स, जो नेट गेन है वो कितना होगा कि 10 में से हम सिंपली 2 माइनस कर देंगे, तो नेट जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ATP के, नेट का मतलब एक चीज़ होती है टोटल और एक चीज़ होती है नेट, ठीक है। तो टोटल तो 10 बन रहे हैं लेकिन इसमें से 2 यूज़ हो रहे हैं, तो जो नेट गेन ऑफ ATP आएगा वो क्या आएगा, 8 ATPs, ठीक है। तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में
8 molecules of ATP are basically formed. Now the anaerobic glycolysis. ठीक है, anaerobic glycolysis takes place in the absence of oxygen. सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है. अब एब्सेंस में हो रहा है तो इसका एंड प्रोडक्ट पाथ जो है पाथवे का वो पायरुवेट नहीं होगा बल्कि दैट इज लैक्टेट. तो एंड प्रोडक्ट ऑफ anaerobic glycolysis is basically lactate. Respiratory chain stops in the absence of oxygen. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जो रेस्पिरेटरी चेन है वो तो स्टॉप हो जाएगी. तो इसमें वो जो 3 एटीपी NADH से बन रहे थे ना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में, वो 3 एटीपी जो है ना वो बेसिकली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में नहीं बनेंगे, क्योंकि NADH जो है रेस्पिरेटरी चेन में जाएगा तो 3 एटीपी देगा ना. और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में रेस्पिरेटरी चेन नहीं हो रही. जब रेस्पिरेटरी चेन नहीं हो रही तो NADH जो प्रोड्यूस हो रहे थे ग्लाइकोलिसिस में वो दे कैनॉट गिव ATP इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, और बल्कि वो जो NADH था वो क्या करेगा, NADH अब हमें 3 ATP नहीं दे रहा क्योंकि वो रेस्पिरेटरी चेन में नहीं एंटर हो रहा. लेकिन ये NADH अब क्या करेगा, बेसिकली ये NADH क्या करेगा कि ये जो उसका एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है ना उसको रिड्यूस कर देगा किसमें, लैक्टेट में. This NADH basically does not give us any energy, but it reduces the pyruvate into lactate. Total amount of ATP which is formed from the anaerobic glycolysis is 4 molecules of ATP. ठीक है, तो जो ATP के molecules बन रहे हैं basically ATP molecules which have been formed, they are basically 4. Aerobic में कितने ATP के molecules बन रहे थे, 10. एनारोबिक में कितने बन रहे हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स, 4. अब 2 तो यूज हो गए हैं इस पाथवे को स्टार्ट करने के लिए, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो. ठीक है, तो 4 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बन रहे हैं ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. 2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन. तो रिमेनिंग हमारे पास कितने रह गए, नेट गेन कितना होगा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड. जी, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम लुबना बतूल कि ग्लाइकोलिसिस हर टाइम होती है. देखिए ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हर टाइम नहीं होगा. व्हेन यू चेक द ग्लूकोज, ठीक है, जब तुम कार्बोहाइड्रेट फूड लोगे, ग्लूकोज लोगे तो उसकी ब्रेकडाउन होगी ना. जब तुम ग्लूकोज ही नहीं ले रहे तो फिर उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी. तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में आएगा चाहे वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके आए चाहे तुम लोगों की डाइट से आए. तो व्हेन देयर इज ग्लूकोज अगर पड़ा है तो जाहिर है उसने फिर यूटिलाइज, उसने ब्रेकडाउन भी तो होना है ना. तो उसको ब्रेकडाउन करवाने के लिए हमारे पास जो है ना हार्मोन भी एक इन्वॉल्व है, पता है तुम लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को बूस्ट करता है, स्टिमुलेट करता है. क्योंकि अगर आपका ग्लूकोज बॉडी में वैसे ही पड़ा रहा है तो ऐसी बॉडी से निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं है. ठीक है, तो ग्लूकोज हमारा पर्पज है ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाना. ठीक है, द पर्पस इज टू बेसिकली मेक द ग्लूकोज यूटिलाइज एंड गिव एनर्जी टू सेल्स. अगर हम ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं करवाएंगे तो सेल्स को एनर्जी कैसे मिलेगी. ठीक है, तो अगर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो सेल्स टेक देयर एनर्जी फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन और लिपिड्स. लेकिन हर टाइम सेल जो है प्रोटीन और लिपिड से एनर्जी नहीं ले सकता क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं. तो जी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हर टाइम नहीं हो रहा था. व्हेन एवर देयर इज ग्लूकोज, जब आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेंगे बॉडी में डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा. कार्बोहाइड्रेट्स का जो एंड प्रोडक्ट है तो ग्लूकोज फिर इसकी ब्रेकडाउन होगी फर्दर कि हमें एनर्जी मिल सके. वरना तो ग्लूकोज वैसे ही भरा रहेगा तो हमें एनर्जी कोई नहीं मिलेगी. जब टूटेगा, जब ब्रेक होगा फिर ही हमें एनर्जी मिलेगी. ये 10 ATP जो है ना तभी बनने हैं जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी. अगर ब्रेकडाउन नहीं होगी तो फिर वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी. इज इट क्लियर. तो एनर्जी आपको मिलती ही तब है जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा. अगर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो नेट आपको टोटल 10 ATPs और नेट आपको 8 ATPs और मिल रहे हैं. और अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो टोटल 4 ATPs और नेट आपको 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. सो द डिफरेंस इज क्लियर. Anaerobic glycolysis, I have repeated, Aksan Nazir. It takes place in the absence of oxygen and product is lactate.
इसमें क्योंकि एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जो NADH एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमें 3 ATP दे रहा था ना रेस्पिरेटरी चेन में एंटर होके, वो NADH एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमें कोई एनर्जी, कोई ATP नहीं देगा, बल्कि वो NADH क्या करेगा कि जो एंड प्रोडक्ट है ना ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, उसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट करा देगा किसमें, लैक्टेट में। और 10 ATP बन रहे हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में और 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में। इज इट क्लियर नाउ? And we should know the difference of the total ATPs formed in aerobic and anaerobic glycolysis and the net amount of ATPs formed in the aerobic and anaerobic glycolysis. ठीक है, नेट और जो टोटल हैं वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन इन द MCQ, नेट अमाउंट ऑफ ATPs formed in aerobic glycolysis। तो आप 10 मत लिखो क्योंकि 10 तो टोटल थे, नेट तो वो हैं जो उसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद जो बाकी बच जाएंगे, तो जो बाकी बच जाएंगे दे आर बेसिकली 8। सो एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस हमें याद होना चाहिए, सिग्निफिकेंस ग्लाइकोलिसिस के हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से पाथवेज हैं जो विच आर द पार्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वी शुड नो, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें लिखी हुई है, रेट लिमिटिंग रिएक्शन, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट लिमिटिंग रिएक्शन। तो रेट लिमिटिंग रिएक्शन इज द slowest reaction in only metabolic pathway with the which basically determines the overall rate of other reactions in the pathway, ठीक है। रेट लिमिटिंग रिएक्शन एक स्लोवेस्ट रिएक्शन होता है किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में, जो बेसिकली डिटरमिन क्या करता है, ओवरऑल रेट ऑफ ऑल अदर रिएक्शंस इन द पाथवे, ठीक है। तो पाथवे में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनका रेट बेसिकली बताता है हमें। अच्छा जी, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सना कंवल, आई शुड रिपीट द एनारोबिक। एनारोबिक में मैंने यही बताया है कि एनारोबिक में ATP 4 बनते हैं, बस ये याद रख लो, ठीक है। और 2 यूज हो जाएंगे तो बाकी कितने रह गए, 2। दिस इज द बेसिकली साइकिल ऑफ द बेसिकली पाथवे ऑफ द ग्लाइकोलिसिस व्हिच हैज बीन गिवन इन योर नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी साइड बाय साइड दी हुई है नेक्स्ट पेज पे, बट दैट इज द बेसिकली क्लियर पिक्चर ऑफ द ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उसके जो स्टेप्स हैं, बिकॉज दैट इज नॉट अ साइकिल, बिकॉज दैट इज द पाथवे बेसिकली, और इसके स्टेप्स जो हैं दे हैव बीन क्लियरली शोन। इसके अलावा जो एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं दे हैव बीन शोन, ठीक है। तो जब भी हमने कोई पाथवे पढ़ना है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स तो तुम लोग याद रख ही रहे हो, लेकिन साथ में जो है ना एंजाइम्स के नाम जो हैं वो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नेम ऑफ द एंजाइम्स इट शुड बी रिमेंबर्ड कि ये वाला जो स्टेप है इसका ये वाला एंजाइम है, ये वाला जो स्टेप है इसका ये वाला एंजाइम है, ठीक है। तो वी मस्ट नो द नेम्स ऑफ द बेसिकली एंजाइम्स। तो जी अब इसमें देखो पाथवे जब शुरू हो रहा है ना, तो उन्होंने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दिया हुआ है, जो तुम लोग अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से। Glycogen has been only mentioned because glycogen is the storage form of the glucose, और जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन हमें दोबारा कन्वर्ट हो जाती है जी ग्लूकोज में, और हमें दे रही होती है एनर्जी। तो इस वजह से बेसिकली क्या है कि दे हैव मेंशन्ड ग्लाइकोजन, लेकिन आप लोग सिंपली ग्लूकोज से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हम ग्लूकोज से ही इसको स्टार्ट करेंगे। देखो जो पहला स्टेप है बेसिकली कि ग्लूकोज जो है वो चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये याद रखना है कि ये जो पाथवे हो रहा है बेसिकली ये हो रहा है किसमें, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ सेल, ठीक है। ये जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का दैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल। देखिए कुछ रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं, ठीक है, कुछ अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रहे हैं, सेल के पार्ट्स से तो आप फेमिलियर ही हो ना। तो जो ग्लाइकोलिसिस है बेसिकली इसका पाथवे हो रहा है बेसिकली किसमें, द पाथवे इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। द फर्स्ट step of the glycolysis is the conversion of glucose into glucose 6 phosphate,
और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, ये याद रखना लाजमी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये सिर्फ ये नहीं याद रखना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, जो एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, तो इसका नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो पहला स्टेप है, तो इसमें हमें एनर्जी मिलेगी या चाहिए होगी। तो फर्स्ट स्टेप है, इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए पाथवे को हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में एनर्जी बेसिकली यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है। एटीपी इज ब्रेक डाउन टू गिव अस एडीपी, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो रहा है किसमें, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, बेसिकली एटीपी चेंजिंग इनटू एटीपी। आप तुम देख लो जब भी एटीपी ब्रेक डाउन होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी बनता है, तो साथ में हमें एक फ्री फॉस्फेट का मॉलिक्यूल भी मिलता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैं लिख भी रही हूँ, ठीक है, रिएक्शन भी मैं लिख रही हूँ कि एटीपी जो है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, एटीपी की, व्हेन इट इज़, जब इसकी ब्रेकडाउन हो रही है एटीपी की, तो आप सबको पता है कि हमें क्या मिल रहा है, वी आर बेसिकली गेटिंग एडीपी एंड प्लस वी आर गेटिंग द फ्री मॉलिक्यूल ऑफ बेसिकली फॉस्फेट, ठीक है। तो जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, बेसिकली मैंने ये बताया है कि जब एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, एटीपी ब्रेक होगा तो आपको एनर्जी मिलेगी ना। व्हेन एटीपी इज ब्रोकन डाउन वी गेट एडीपी एंड फ्री मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो रहा है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, तो एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो लिबरेट हो रहा है, ठीक है, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड सिंगल फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब वो जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो इस रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन के तौर पे काम करेगा, ठीक है। The first step है जो ग्लाइकोलाइसिस का, that involves basically phosphorylation, means addition of phosphate, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन इन्वॉल्व क्या कर रहा है, phosphorylation, which means addition of phosphate। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज चेंज हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और फॉस्फेट कहाँ से आया, अब ये जो एटीपी ने एडीपी बनाया और साथ में सिंगल फॉस्फेट बना था, ये वो फॉस्फेट है बेसिकली जो ग्लूकोज के साथ अटैच हो रहा है। इज इट क्लियर कि फॉस्फोराइलेशन है पहला रिएक्शन, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कहाँ से आया है, जो एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होके हमें एनर्जी दे रहा है और साथ में फॉस्फेट दे रहा है, ठीक है। तो वो फॉस्फेट बेसिकली ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा और बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फर्स्ट स्टेप इज चेंज ऑफ द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड दैट इज द एक्टिवेशन स्टेप, इट रिक्वायर्स द एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन स्टेप है और इसको एनर्जी भी चाहिए है। अब ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज के साथ 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। द मीनिंग ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज दैट फॉस्फेट इज अटैच्ड टू ग्लूकोज एट द 6th पोजीशन, ठीक है। फॉस्फेट इज अटैच्ड टू ग्लूकोज एट इट्स 6th पोजीशन। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है आपको पता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो 6th वाला कार्बन है ना बेसिकली उसके साथ फॉस्फेट अटैच किया गया है, दैट्स वाई जो प्रोडक्ट हमारी बनी है उसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। अब मैंने यही बात बताई है, जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आना, ग्लूकोज ने चेंज होना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज ने कन्वर्ट होना है, दैट इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक पाथवे। आनी इसमें चीज़ कहीं से नहीं है, ये बननी है एक से दूसरी चीज़, ठीक है। रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन होना है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन है ना जो भी हम पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस बायोकेमिकल पाथवे है जो भी मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था। तो बेसिकली इसमें ग्लूकोज चेंज हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इज इट क्लियर। एंड अटैच टू ग्लूकोज एट 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन पे अटैच हो रहा है, इस वजह से इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है जी। इस मेरे ख्याल में जब हम पाथवे प्रॉपरली शुरू करने से पहले जो है ना हम वी आर हैविंग अ ब्रेक बेसिकली ना, क्योंकि हम इसमें फिर इंटरप्शन इसको नहीं कर सकते, पाथवे को ना एक फ़्लो में है, तो पूरे फ्लो में हम इंशाल्लाह जो है ना इस पाथवे को भी करते हैं, ठीक है। तो जस्ट गोइंग फॉर ब्रेक फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हम एक सीक्वेंस में, ताकि क्योंकि इसको हम कंटिन्यू पर करें, ताकि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा स्टेप, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। और मेक श्योर कि सब पास उनकी बुक्स हों, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो फ़ौरन से अपनी किताब पे लिख सको, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए डेफिनेटली लाजमी है कि तुम लोगों की किताबें तुम लोगों के सामने होनी चाहिए, ठीक है।
ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, फ़ौरन तुम लोग जॉट डाउन कर लो. So I know that most of the students are not having their books. I know. Even I asked you to talk to your coordinator regarding the availability of the books कि अगर सारी किताबें उधर हैं तो डेफिनेटली आजकल घरों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं तो तुम लोग वहाँ से किताब ले आओ. दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट. नेट पे तो हम इस पे वेबिनार पे तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है. तो लेकिन ये है कि ट्राई टू परचेज द बुक और गेट द बुक फ्रॉम वेयर इट इज़. अच्छा जी, 10 मिनट्स की ब्रेक है. 10 मिनट्स में प्लीज़ कम बैक, ठीक है. सो 10 मिनट्स हैं अभी 10 बजने में, तो वी आर बैक आफ्टर 10 मिनट्स. ओके.
Class, we are back. Hello, we are back after a break. We are back. I hope you're also back. I hope you're also back. You're able to hear me. Audio, video clear. Yes, yes. Lecture has been restarted after a break. So, coming back to the carbohydrates metabolism, coming back to the glycolysis, one of the important metabolic pathway. Can't just ignore the importance of glycolysis, because in every form we are taking the basically carbohydrate food. Okay, there's certain different forms we are taking in the form of the bread, we are taking in the form of the rice, we are taking in the form of the cereals, taking in the form of the sugars. So there are number of basically sources of carbohydrate foods. ठीक है, जिसके sources काफी ज्यादा हैं, किसी ना किसी फॉर्म में डेली हम इसको ले रहे हैं बेसिकली. Now coming towards the basically pathway जिस पे अभी हम थे, कि जो फर्स्ट स्टेप है, इट रिक्वायर्स द बेसिकली एनर्जी. ठीक है, फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली एनर्जी हमें चाहिए है. ठीक है, फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जो हमारे सेल्स में ऑलरेडी एटीपी पड़ी होती है. ठीक है, ऑलरेडी जो एटीपी हमारे सेल्स में बेसिकली होती है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एनर्जी, द एटीपी विच हैज़ बीन फाउंड इन द सेल. ठीक है, तो वो एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल में ऑलरेडी हैं, ये हमें बेसिकली दे रहे हैं एनर्जी. और मैंने पहले ही बताया कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा तो आपको क्या मिलेगा? एटीपी एंड प्लस 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 एटीपी एंड प्लस फ्री फॉस्फेट. ठीक है, तो एटीपी का मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेगा तो वी विल गेट एडीपी एंड प्लस द फ्री मॉलिक्यूल ऑफ द फॉस्फेट, जो मैंने लिख के भी तुम लोग को बताया. अब ये जो फ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट है ना, बेसिकली इट इज कंबाइनिंग विद द ग्लूकोज एंड इट दिस इज गोइंग टू गिव यू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. और 6 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं है कि 6 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फेट के. 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो 6 वाला कार्बन है, जो 6 पोजीशन है, वहां पे जाके बेसिकली ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच कर रहा है. ठीक है, एट द 6 पोजीशन द फॉस्फेट इज गोइंग टू अटैच टू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज, इसका डिफरेंस भी जो है वो हम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोकाइनेज एंड द हेक्सोकाइनेज. ठीक है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, इसका जो डिफरेंस है दैट हैज बीन गिवन इन द टेबल. ठीक है, ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज. जो ग्लूकोकाइनेज है वो सिर्फ लिवर सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन जो हेक्सोकाइनेज है वो बाकी जो आपके सेल्स हैं, क्योंकि लिवर सेल में तो सिर्फ नहीं ना हो रहा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन एवरी सेल. देखो, ग्लूकोज एक वाहिद मेटाबोलाइट है, दैट इज द ओनली मेटाबोलाइट बेसिकली जिसके रिसेप्टर्स जो है ना हर सेल के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि ये कि हर सेल के अंदर एंट्री कर सकता है. ठीक है, तो ग्लूकोज इज द ओनली मेटाबोलाइट जिसके रिसेप्टर्स हर सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं. ठीक है, इसके रिसेप्टर्स हर सेल के ऊपर प्रेजेंट हैं, और ये जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनमें एंटर हो सकता है. ठीक है, तो जी जो आपका अब हमने डिफरेंस देखा है कि एक लिवर सेल में प्रेजेंट है और एक बाकी जितने टिश्यूज हैं, जितने सेल्स हैं, उस पर प्रेजेंट है. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है दैट इज चेंजिंग इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फेट जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. हमें पता है कि ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं. तो पहले रिएक्शन में, पहले स्टेप में हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, जो दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का उसमें हो रहा है आइसोमराइजेशन. ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंजिंग इनटू सिंपली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. वो फॉस्फेट अपनी 6 पोजीशन पे ही रहेगा. ठीक है, और जो ग्लूकोज है वो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से चेंज हो जाएगा किसमें? फ्रक्टोज में. ठीक है, तो एंजाइम का नाम हमने जो है वो लाजमी याद रखना है. ठीक है, that is glucohexose isomerase. ठीक है, तो isomerase is the enzyme which is carrying out the basically second reaction. तो glucose 6 phosphate is changing into fructose 6 phosphate. अब जो है देखो नेक्स्ट जो है fructose 6 phosphate it is changing into fructose 1,6 biphosphate. ठीक है, और स्टेप में भी जो है एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, बिकॉज
If you remember, I say there are two molecules of basically ATP which are basically required to initiate the process of glycolysis. ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के चाहिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो एक तो फर्स्ट स्टेप में यूज हो गया जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जब बन रहा है तो तब एटीपी का मॉलिक्यूल उसी तरह से बॉडी से हमारी जो अवेलेबल एटीपी है वो ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, और एटीपी से हमें मिल रहा है एडीपी प्लस फॉस्फेट। ठीक है, तो पहले हमारे पास एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था, अब दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो नेमिंग इसकी हो गई है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। बाई मीन्स 2। ठीक है, बाई मीन्स 2। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का मतलब है कि अब इसके साथ दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। अब एक तो 6 पोजीशन पे था पहले जो अटैच था, दूसरा जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो कहाँ अटैच हो रहा है, दैट इज गोइंग टू अटैच एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। जो बाइफॉस्फेट है, टू फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, और जो सिंगल फॉस्फेट है उसको आप सिंगल फॉस्फेट लिखोगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल अटैच है। ठीक है, फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट का मतलब है बाई मीन्स 2 के दो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं फॉस्फेट। इज इट क्लियर? तो एक मॉलिक्यूल 6 पोजीशन पे अटैच था, और अब जो मॉलिक्यूल आएगा फॉस्फेट का वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, वो हो रहा है फर्स्ट पोजीशन पे अटैच फ्रक्टोज के साथ। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली two ATP molecules which are required for the start of the pathway, for the initiation of the pathway. Is it okay? ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज चेंजिंग इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज चेंजिंग इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, आइसोमराइजेशन हो रही है, और अब दोबारा फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और फॉस्फोराइलेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज द एंजाइम। ठीक है, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में चेंज कर रहा है, और हमने एंजाइम्स के नाम जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्योंकि आइसोमराइजेशन हो रही है। ठीक है, आइसोमराइजेशन हो रही है तो इसलिए उसमें एनर्जी नहीं चाहिए। फर्स्ट और थर्ड जो स्टेप हैं बेसिकली ये एक्टिवेशन के हमारे स्टेप से, यानी कि अब तक एक्टिवेशन हुई है तीसरे स्टेप तक। ठीक है, तो एक्टिवेशन वाला स्टेप अब खत्म हो गया। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन के लिए यूज हो गए, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन गया। अब मुझे बताओ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कितने कार्बन है? ग्लूकोज 6 कार्बन थे ना, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में भी कार्बन तो 6 ही हैं। हाँ, साथ में दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जरूर साथ में अटैच हुए हुए हैं, बट कार्बन तो 6 ही है ना। अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, दैट इज द 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है, ये ब्रेक करेगा 2 3 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है, 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे ना। 3 कार्बन के अगर 2 कंपाउंड्स हो तो उसका मतलब भी वही है कि ये इसमें 6 कार्बन है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये ब्रेक कर रहा है 3 कार्बन कंपाउंड में। एक तो 3 कार्बन कंपाउंड है वो है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट ब्रेक कर रहा है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में, और साथ में किस में ब्रेक कर रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में भी 3 कार्बन होते हैं और DHAP में भी 3 कार्बन होते हैं। ये 3 कार्बन प्लस करो तो 6 कार्बन बन जाता है। ठीक है जी, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट चेंज हो रहा है DHAP में और 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, एंड बोथ ऑफ दीज DHAP and 3 phosphoglyceraldehyde they are interchangeable with each other। जब ये इंटरचेंजेबल होंगे तो तुम लोग देख रहे हो कि दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ एरो का मतलब है these reactions are reversible, और अगर एक तरफ एरो है तो इसका मतलब है this reaction is irreversible। ये तो तुम लोगों को पहले से भी पता है। ठीक है, तो जितने भी स्टेप्स हैं जिसमें दोनों तरफ एरो हैं इसका मतलब है ये रिवर्सिबल स्टेप्स हैं, और जितने भी स्टेप्स हैं जिसमें एक तरफ एरो है, सिंगल एरो है, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो वी शुड नो विच रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एंड विच रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ये हमें पता होना चाहिए रिवर्सिबल कौन सा है और
irreversible कौन सा है, बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन दैट राइट ओनली द रिवर्सिबल रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो हमें ये पता होना चाहिए रिवर्सिबल कौन से हैं और इरिवर्सिबल कौन से हैं। अब जी एल्डोज, एल्डोलेज इज द एंजाइम जो कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को चेंज कर रहा है दो 3 कार्बन कंपाउंड्स में, एक फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डीएचएपी डाइहाइड्रो ऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है ना वो चेंज हो रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है, द एंजाइम इज डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और इस प्रोसेस में देखो जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में चेंज हो रहा है तो इस स्टेप में NAD से NADH2 भी बन रहा है, ठीक है। और जब भी हमें पता है कि जब भी NAD की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी तो हमें 3 ATP मिलेंगे, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज ऑक्सीडेशन और reduction of NAD तो we will get 3 molecules of ATP, 3 phosphoglyceraldehyde is changing into 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। और जो है हमें एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इस स्टेप में बन रहे हैं, ठीक है। कैसे बन रहे हैं मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जब भी NAD की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं। DHAP की एब्रिविएशन मैंने तुम लोग को बताई है, तुम लोग के उसमें नोट्स में भी लिखी हुई है, दैट इज बुक में भी लिखी हुई है, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इट हैज बीन रिटन इन योर बुक, आगे एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जी 1,3 जो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जी वो चेंज हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। एंजाइम्स के नाम तुम लोगों को लाजमी याद रखने हैं। और यहाँ भी इस स्टेप में भी एक ADP का मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, किसमें, ATP के मॉलिक्यूल में, क्योंकि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ना, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से ना इसमें से एक निकल गया, यानी कि डीफॉस्फोराइलेशन हुई है, ठीक है। एक निकल गया तो बाकी क्या रह गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 का मतलब ये था कि एक 1 पोजीशन पे है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और एक 3 पोजीशन पे है। अब 1 पोजीशन वाला फॉस्फेट जो है निकल गया, वो ADP के साथ मिलके क्या बना रहा है, ADP और फॉस्फेट मिलके बना रहे हैं ATP, ठीक है। एंड द रिमेनिंग प्रोडक्ट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, पिछले जरा रिएक्शन पे चलो, ये 6 कार्बन कंपाउंड जब 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज हुआ था तो इसका मतलब ये था कि एक साइड पे DHAP बना है और एक साइड पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ठीक है। जो DHAP है ना वो फिर चेंज हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। जो दूसरी साइड है ना जहाँ पे DHAP लिखा हुआ है उसके नीचे भी ये सारे स्टेप हो रहे हैं, क्योंकि वो जो DHAP बना है उसने वही नहीं बैठे रहना, उसने चेंज हो जाना है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में दोबारा। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनना है, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने किस में चेंज होना है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बन रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस पाथवे में स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में हो रही है म्यूटेशन। पहले फॉस्फेट प्रेजेंट था 3rd पोजीशन पे, अब 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच हैं। द मीनिंग ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज के प्रीवियसली phosphate group is attached to the 3rd position, but now the phosphate group due to mutation phosphate group is shifted to the 2nd position, ठीक है। is it clear that the meaning of the 3 phosphoglyceric acid is कि phosphate group 3rd position में present है और जब 2 phosphoglyceric acid बनता है तो ये है कि जो phosphate group है वो अब 3rd पोजीशन से म्यूटेशन हुई है, म्यूटेज एंजाइम है, इसने फॉस्फोराइलेज म्यूटेज ने म्यूटेशन करवाई है और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो पहले 3 पे प्रेजेंट था, अब वो किस पे आ गया, अब वो 2nd पोजीशन पे आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 phosphoglyceric acid and we should also remember the name of the enzymes. Mutase is the enzyme which is present, ठीक है जी। is it clear? नाउ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये इनोलेज और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ये चेंज हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो बनाता है इनोल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है इनोल पायरुवेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम काइनेज। और यहाँ पे भी एक ATP का मॉलिक्यूल देखो बन रहा है, ADP चेंज हो रहा है
एटीपी में, ठीक है। और इनोल पायरुवेट से फिर फौरन ही, दैट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फौरन ही बन जाता है पायरुवेट। इनोल पायरुवेट इज चेंज इनटू पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट पे अब ग्लाइकोलिसिस जो है ना, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया कि इसने हमें पायरुवेट दे दिया, एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो ये वाला पाथवे तो खत्म हो गया। अब इसमें एक चीज याद रखनी है जो मैंने बताई है अभी तुम लोगों को, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन, कि फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। एक डीएचएपी, एक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने जैसे सीरीज ऑफ आगे आपको स्टेप दिए ना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बना है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, 2 फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट बना है, इनोल पायरुवेट बना है, और पायरुवेट जो बना है, ये सारे स्टेप्स डीएचएपी के नीचे भी रिपीट हो रहे हैं। बट पाथवे जब तुम लोगों ने भी बनाना है तो हम एक ही शो करेंगे बस, ठीक है। अंडरस्टूड है कि डीएचएपी के भी नीचे ये सारे स्टेप हो रहे हैं, ठीक है। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसके नीचे भी सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स ये हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा ड्रॉ करें तो हमने जो है ना वो क्या करना है, एक ही बनाना है, जिस तरह ये तुम लोगों की बुक में बना हुआ है पाथवे, इसी तरह से हम बनाना है। वाटर का रोल ये है कि जो है ना कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कुछ में फॉस्फेट इन्वॉल्व है, फॉस्फोराइलेशन, कुछ में फॉस्फेट की रिमूवल इन्वॉल्व है, डीफॉस्फोराइलेशन, इसी तरह से कुछ में वाटर इन्वॉल्व है, हाइड्रेशन वाले जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो एनोलेज इज द एंजाइम जिसको साथ में मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर चाहिए और साथ में वाटर भी चाहिए। तो अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब जो पायरुवेट बन गई, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस तो खत्म हो गई, जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि जो पायरुवेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, लैक्टेट में, ठीक है। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो पाथवे सारा ऐसे ही चलेगा, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो होगा ना वो पायरुवेट नहीं होगा, बल्कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा, वो पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा लैक्टेट में। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टेट, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है पायरुवेट। और दूसरा ये कि जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है ना उसमें ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 जब बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है ना, इसमें NAD से NADH बन रहा है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में यहाँ NAD से NADH तो बनेगा, लेकिन NAD से जब NADH बनेगा तो हमें एनर्जी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में कोई नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? NAD से NADH जब बनेगा हमें एनर्जी कोई नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। अब तुम लोग जरा मुझे सब सब मुझे बता दो कि गिन के कि ये जो हमने पाथवे पढ़ा है, ये जो तुम लोगों ने भी स्टेप्स पढ़े हैं, इसमें कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ट्राई टू कैलकुलेट लुकिंग एट द पिक्चर, ट्राई टू कैलकुलेट एंड टेल मी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पाथवे। कितने बन रहे हैं एटीपी के मॉलिक्यूल्स? सब जो है वो रिप्लाई करोगे, सब जो है बताओगे कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स इस पाथवे में बन रहे हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म, ठीक है, वो तुम लोग कैलकुलेट करो, देखो इसको और से, और मुझे बताओ कि कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स इसमें बन रहे हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, इन दिस स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन दिस होल प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। बिकॉज आई नो कि यहाँ पे तुम लोग गलती करोगे, बिल्कुल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे गलती करोगे, लेकिन इसीलिए सिखाने के लिए ही, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि कितने एटीपी के जो है ना वो मॉलिक्यूल्स बेसिकली बन रहे हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड, कितने एटीपी हैं जो कुछ मुझे रिप्लाई आ रहा है बिल्कुल। बाकी स्टूडेंट बेस्ट है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और मुझे बताइए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। कैलकुलेट, गिनो,
पाथवे तुम लोग के सामने है, प्रोसेस तुम लोग के सामने है। डू काउंट के हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। आई एम गेटिंग द रिप्लाईज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। 5 या 8 एक फिगर आनी है, वैसे 5 और 8 दोनों ही नहीं बन रहे। और आपने टोटल पूछा है विदाउट यूटिलाइजेशन, टोटल पूछा है एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो इसमें कितने बन रहे हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विच आर फॉर्म्ड इज बेसिक 10। 10 बन रहे हैं, 5 नहीं बन रहे, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से डीएचएपी और 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनेंगे, तो मैंने ये बताया है कि 3 फॉस्फोग्लिसराइड के नीचे तो जो स्टेप्स होने हैं वो तो शो किए गए हैं, लेकिन डीएचएपी के भी नीचे अंडरस्टूड है कि ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद जो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको आप डबल कर दोगे ना। 3 तो बन रहे एनएडी से, जब एनएडीएच बन रहा है 3 एटीपी तब बन रहे हैं, तो 3 नहीं होगे तो वो कहोगे डीएचएपी नीचे बनेंगे ना। ये तो हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नीचे पढ़ रहे हैं, डीएचएपी के नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। डीएचएपी के नीचे भी यही स्टेप्स जो है ना वो प्रोसीड कर रहे हैं, वही स्टेप्स जो है ना डीएचएपी के नीचे भी हो रहे हैं। ओके, तो डीएचएपी के नीचे भी यही स्टेप्स हो रहे हैं। तो 3 यहाँ पे बन गए एनएडी से, जब एनएडीएच बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 6 हो गए, क्योंकि डीएचएपी के फिर उसके बाद एक बन रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो इसको एक ना काउंट करो, इसको 2 काउंट करो। 6 पहले और 2 आप कितने हो गए 8। और एक एटीपी का मॉलिक्यूल देखो बन रहा है जब फोस्फो इनोल पायरुवेट से हमें इनोल पायरुवेट मिल रहा है, एक एटीपी का मॉलिक्यूल तब बन रहा है। तो हम इसको एक नहीं गिनेंगे कि 2 गिनेंगे, क्योंकि डीएचएपी के नीचे भी ये ज़्यादा स्टेप हो रहा है और वहां पे भी बन रहा है। तो कितने हो गए 8 और 2 10। तो टोटल बन रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड। दोबारा इसको देख लो, अगर कोई मसला है तो यू कैन आस्क। 10 ATP molecules are formed when one molecule of glucose is oxidized। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होगा तो वी विल गेट 10 molecules of ATP। ठीक है, तो हमें 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे ATP पे। ठीक है, और अब ये देखो इन्होंने एक पायरुवेट लिखा हुआ है एंड पे, लेकिन डीएचएपी के भी नीचे ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पायरुवेट के? How many molecules of pyruvate we will get from the oxidation of the single molecule of glucose? We will get 2 molecules of ATP from 1 molecule of glucose which has been oxidized। ठीक है, जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुवेट के। इज इट क्लियर? पायरुवेट के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और वैसे भी अगर तुम लोगों ने कभी पायरुवेट का स्ट्रक्चर देखा हो तो पायरुवेट कंटेन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, पायरुवेट में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, और हमें पता है कि ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ज़्यादा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलेंगे तो वो 6 कार्बन वाला नंबर भी पूरा होगा ना, क्योंकि हमने वो नंबर भी तो पूरा करना है। सो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा तो हमें 6 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके? पायरुवेट के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट विल बी फॉर्म्ड। और एनर्जी में कितने मिल रहे हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ये टोटल हैं। अब आपने सबने बताना है कि नेट कितने मिलेंगे, यानी कि यूज कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल में से हम यूज्ड माइनस कर देंगे तो वी विल गेट द नेट मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड। ठीक है, एनारोबिक पे भी हम आते हैं, अभी हम सिर्फ एरोबिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनारोबिक में भी अभी हम डिस्कस करते हैं कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। लाजमी ये क्वेश्चन तो बस है, अगर ये वैसे नहीं भी आता तो एमसीक्यूज में, शॉर्ट एससीक्यूज में लाजमी आ जाता होता है। तो अब तुम सबने बताना है कि जी हमें नेट कितने एटीपी मिले हैं, नेट अमाउंट ऑफ एटीपी सबने बताना है, सबका मुझे आंसर चाहिए। अभी भी टोटल वाला भी आंसर सबने नहीं दिया। आई एम सीइंग योर पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो नेट मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं एटीपी के?
Net number of ATPs which have been formed. जी बिल्कुल, 10 में से जब 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज हो हैं टू स्टार्ट द रिएक्शन, टू एक्टिवेट द रिएक्शन, तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे? जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 8। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि नेट अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म, तो हम 8 लिखेंगे। अगर टोटल अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म तो हम 10 लिखेंगे। इज इट क्लियर अबाउट द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस? ये एनर्जी कैलकुलेशंस हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, दीज आर द bioenergetics which are formed by the aerobic glycolysis. Bioenergetics aerobic। अब जी एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस की हम जरा बात कर रहे हैं। जो एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली? एनरोबिक जो ग्लाइकोलिसिस है बेसिकली, इसमें तुम लोग देखो कि पायरुवेट के बाद लैक्टेट बन रहा है। ठीक है, पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है, और पायरुवेट से जब लैक्टेट बन रहा है तो NADH2 NAD में चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो NAD से NADH2 या NADH2 से जो NAD बन रहा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम है रेस्पिरेटरी चेन। इट प्रोसीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कोई नहीं प्रेजेंट है, तो जो NAD से NADH2 बन रहा है इस ये बनेगा तो सही, लेकिन इससे हमें 3 मॉलिक्यूल ATP के नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो जो 3 मॉलिक्यूल ATP के मिल रहे थे ना NAD से जब NADH बनता है, तो वी विल गेट द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। वो 3 मॉलिक्यूल्स ATP के हमें नहीं मिलेंगे जब NAD से NADH बनेगा। तो आप देखो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इस पे NADH वाला छोड़ दो, तो बाकी जो नीचे बन रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक एटीपी का मॉलिक्यूल वो बनेगा, यानी कि 2, क्योंकि ये DHEP के नीचे भी तो बनेगा ना। और एक एटीपी का मॉलिक्यूल बन रहा है जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से इनोल पायरुवेट बन रहा है, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो टोटल जो है ना 4 मॉलिक्यूल्स ATP के बन रहे हैं एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। जो ऊपर NADA से NADH2 बन रहे हैं ना वो यहाँ पे नहीं बनेंगे, एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बाय आर गेटिंग we are 4 molecule of HP from तो 2 यूज हो जाएंगे। इसको कितने होंगे वो बताओ मुझे। of ATPs formed during the anaerobic glycolysis and net amount of ATP formed during the anaerobic glycolysis। टोटल कितने बन रहे हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में और नेट कितने बन रहे हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ATPs। ये हमें लाजमी पता होना चाहिए, एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। लुबना बतूल, जो आपका क्वेश्चन है, यस यू कैन आस्क। ओके, आई विल रिपीट इट। जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है उसका मैंने बताया है कि आपका जो स्टेप है जिसपे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ठीक है, कौन सा स्टेप है ये? फोर्थ स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, फोर्थ स्टेप जिसपे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, उस टाइम पे देखो NAD से जब NADH2 बनता है तो 3 मॉलिक्यूल्स ATP के बन रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है सिर्फ एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। जब एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगी तो इस स्टेप में आपको कोई ATP नहीं मिलेगा, यानी कि NAD से जब NADH2 बनेगा तो वी विल गेट नो ATP बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस। बाकी आगे जो 2 ATP बन रहे हैं ना वो बनेंगे। ठीक है, एनरोबिक में जो आगे सारा पाथवे एनरोबिक का भी सेम होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो सारा पाथवे जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का है वो सिमिलर है, सारा वही है, लेकिन ये है कि एनर्जी हमें नहीं मिलेगी एन से NADH2 जब बनेगा, ठीक है, एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। तो बाकी जो दो एटीपी बन रहे हैं वो बनेंगे, और एंड में जो पायरुवेट है उससे लैक्टेट बनेगा, ठीक है, उसका एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टेट। ये तो पायरुवेट पे जाके रुक जाता है ना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट पे जाके नहीं रुकेगा, बल्कि ये चेंज हो जाएगा किसमें, लैक्टेट में, ठीक है। और हमें कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलेंगे, चार, दो यानी कि यहाँ पे 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब एडीपी से एटीपी बन रहा है, और ये DHA पी के भी नीचे तो बन रहा है ना, ठीक है ना, तो एक यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे मिला है, तो टोटल इसको डबल कर दोगे, यानी कि चार, चार में से दो यूज हो गए हैं इनिशियल एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में, तो बाकी कितने मिलेंगे हमें एटीपी, टू। तो नेट मॉलिक्यूल जो हमें मिल रहा है एटीपी का ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वो दो हैं, और टोटल एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वो चार। आप pathways हैं, cause that is difficult to student, but we are trying our best कि हम जो है बेस्ट लेवल पे जाके जो है ना इसको स्टडी कर सकें, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप आवर टॉपिक्स, ठीक है, हम अपना लेक्चर या अपने जो भी क्लासेस हैं हम स्टॉप नहीं कर सकते। वेरी मच तुम लोग इन्वॉल्व रहोगे तो कैन पाथवे इनमें क्या, कहाँ पे एटीपी बात, एटीपी कहाँ पे, you can simply ask the questions। अच्छा, आप जो डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है ना, देखो कहाँ पे हो रही है फॉस्फोराइलेशन, वो लोग रिलेशन ना कि जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फो लिखा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, क्योंकि एक ही फॉस्फेट दो ना 3 पे था, तो जब हाई 3 पे है ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड is it okay? यहाँ पे हो जिनमें डी कौन फॉस्फोइन ना, तो इस चार ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें डीफॉस्फोराइलेशन है। जिनको आवाज नहीं आ रही प्लीज डिकनेक्ट करें, मैं भी द्वारा, लेकिन तुम लोग get जी, I have reconnected। I advise you please also reason that there may be or vision problem, okay, try to reconnect।
ओके, क्या आई थिंक इशू मे बी रिजॉल्व। आप तुम लोग को आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही है बिकॉज आई रिकनेक्टेड। ओके, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश अगेन। ठीक है, मैं करती हूँ, दोबारा करती हूँ ताकि तुम लोगों को जो है क्लियर। ओके, तब कैलकुलेट करो इट्स। Okay, I'm going to reconnect. I'm going to reconnect. Wait a moment. Please wait to reconnect. So, class, I have reconnect. Audio is clear. I have reconnect. I connected. I have did voice is clear. Aliza, दरवाजा I have reconnect and it's clear. Okay, 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 okay. And Robert calls दो यूज हो जाएंगे। फोर फोर इज टू विल यूटिलाइज एंड नेट मिलेंगे हमें 2 ATP। ठीक है, इज इट क्लियर? अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स
Okay, we are moving towards the next slide. अच्छा, डिफरेंसेस जो हमने बेसिकली किए थे, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज से डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोकाइनेज एंड द हेक्सोकाइनेज है वो सिर्फ लिवर में जो हेक्सोकाइनेज भी प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तो हर ग्लाइकोलाइसिस इज टेकिंग प्लेस इन ऑल द सेल्स। तो और जो हेक्सोकाइनेज है वो लिवर में भी प्रेजेंट है, बाकी टिश्यूज में भी प्रेजेंट है। ओके, बाकी सारे टिश्यूज में भी प्रेजेंट है, बाकी सारे टिश्यूज में भी हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इससे आपको इसके अलावा है कि इसकी हाई है, ठीक है, और जो हेक्सोकाइनेज एम वैल्यू लो है। इसके अलावा जो है इट इज नॉट एन एलोस्टेरिक एंजाइम, इट इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। जो टेबल में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है, वो हमने करने हैं, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी डिपेंड कर रही है, इसकी जो है ग्लूकोज पे इसकी नहीं डिपेंड कर रही, ठीक है। तो डिफरेंसेस जो हैं दैट हैज बीन गिवन इन द टेबल एंड वी शुड डू इट, ठीक है, ये हमें करने हैं। बाकी जो है इस पेज पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं ग्लाइकोलाइसिस के और रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं ग्लाइकोलाइसिस के, ये हमने लाजमी तुम लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं ग्लाइकोलाइसिस के और रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो जैसे ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, तो जो पहला रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, जो फर्स्ट दैट इज अब वो भी रिवर्सिबल वन दैट इज ऑल्सो irreversible reaction। जो फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से दैट इज ऑल्सो द इनरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये सारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। ये हमने याद रखना है कि रिवर्सिबल कौन से हैं और इरिवर्सिबल कौन से नहीं। And Pella voice is clear. Has the voice issue has been resolved? Solved? Why should that be good? Okay, fine. Okay, fine. Okay, fine. If if okay, to look at slides. Remember, irreversible and reversible
reaction, difference glucokinase and hexokinase. The difference of glucokinase, hexokinase. Should remember the difference. जो difference glucokinase और hexokinase, and we must know what are the effects of glycolysis and what are the irreversible effects of glycolysis. ठीक, ये दोनों जो है ना बेसिक ने, बिकॉज समटाइम्स जो है वो एक नहीं होता, राइट द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, राइट द रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। डिफरेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज एंड हेक्सोकाइनेज याद रखना है, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज का डिफरेंस है।
Hello, class. Are you able to hear me? Reconnected. I have reconnected. I have reconnected. I'm back. Actually, there was some connection problem. Oh, do you understand your do you understand your assignment? Do not touch. I have connected. So do you understand your assignment? Okay. So it was about the glycolysis and the today's lecture. So pick it up and that is your assignment. Read the glycolysis. ठीक है, glycolysis तुम सब करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी को हमने प्रोसीड करना है, ठीक है, कोलिसिस को ही हम प्रोसीड करना नेक्स्ट टाइम। तो इस वजह से ग्लाइकोलिसिस कोई अर्जेंट जो है, मैंने बताया है कि जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो दी हुई है, वो तुम सब ने पढ़कर आनी है, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है ग्लाइकोलिसिस की, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं, ये तुम लोगों को चाहिए, ठीक है, ये तुम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। जो डिफरेंस है ग्लूकोकाइनेज एक्सोकाइनेज का, वो भी करना है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ग्लूकोज और हमारा जो बेसिकली इसकी रिलेशन है, ठीक, एक्सप्लेनेशन है बेसिकली कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं और रिवर्सिबल हैं, क्योंकि पाथवे नहीं आता ग्लाइकोलिसिस का। आपसे यही पूछा जाता, रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक्सप्लेन द इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो आपने करनी है, ठीक है। तो आई एम बेसिकली साइनिंग ऑफ, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, ठीक है, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट, तुम लोगों ने कर ठीक है, क्लास लोगों ने करके आना, ठीक है, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।